अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और हमारी तो है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे एक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इट मे नॉट बी पार्ट ऑफ योर कल्चर। जय शंकर, साइलेंस बीबीसी जर्नलिस्ट। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। You talked about Prime Minister Modi's visit to Moscow last month, and a lot of people here were very upset to see that embrace between the two leaders. You know, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. Also, they were quite upset to see India overtake China in terms of the biggest importer of Russian crude oil. And also, they say they're disappointed that there hasn't been an explicit condemnation of the full-scale invasion of Ukraine. India is a big oil consumer. It's a big oil importer because we don't have oil. Now, it's not like there's a political strategy to buy oil. There is a oil strategy to buy oil. There's a market strategy to buy oil. And also, they say they're disappointed that there hasn't been an explicit condemnation of the full-scale invasion of Ukraine. So, in light of that, I'm just wondering whether you had difficulty today persuading President Zelensky that India is not favouring Russia, but is indeed pursuing a policy of non-alignment. I think it was a perfectly convivial conversation. I think it was very constructive. I think there was a lot that we said, which he heard with a great deal of attention. He knows that we mean well by Ukraine. He knows that we are today very, very keen that this conflict should come to an end. Minister Nick Beek from BBC News. You talked about Prime Minister Modi's visit to Moscow last month, and a lot of people here were very upset to see that embrace between the two leaders. Absolutely. Also, they were quite upset to see India overtake China in terms of the biggest importer of Russian crude oil. And also, they say they're disappointed that there hasn't been an explicit condemnation of the full-scale invasion of Ukraine. So, in light of that, I'm just wondering whether you had difficulty today persuading President Zelensky that India is not favouring Russia, but is indeed pursuing a policy of non-alignment. And secondly, because of that meeting in Russia last month, I think Prime Minister Modi is probably the most significant, influential world leader to have spoken to both sides recently. What personal role could he play in some sort of pursuit of peace? Thank you. Regarding your question, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. So, in fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean. In terms of what you asked about the oil issue, look, India is a big oil consumer. It's a big oil importer because we don't have oil. Now, it's not like there's a political strategy to buy oil. There is a oil strategy to buy oil. There's a market strategy to buy oil. So the figures of where we get our oil imports go up and down. It depends on the state of the market. But it would definitely, I think the fact that the market is tight, that today big suppliers like Iran and Venezuela, who used to supply India, are constrained from operating freely in the markets, I think is a factor which needs to be taken into account. Regarding the conversation between the Prime Minister and President Zelensky, I think it was a perfectly convivial conversation. I think it was very constructive. I think there was a lot that we said, which he heard with a great deal of attention. He knows that we mean well by Ukraine. He knows that we are today very, very keen that this conflict should come to an end.
and essentially what the message from our side to him, which which surely would have not come as a surprise to him, is that if there is anything that we can do in any way, in sort of upfront or behind or supporting somebody, it's the objective that we are interested in, rather than the process. We are willing to do whatever we can, because we do think that the continuation of this conflict is terrible for, obviously, for Ukraine itself and for the world as well. बिल्कुल यार, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, क्योंकि एक जब भी एक इकट्ठे होते हैं ना डॉक्टर एस जयशंकर के सामने, ये जितने भी एंकर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना एक उल्टे उल्टे क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि ना उनको एक थोड़ा मिर्ची वाला माल मिले कि जो एक आगे वो एक बेच सके। इस तरह का उनका एक हमेशा माइंड रहा है। और पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि एक पीएम मोदी जब रशिया गए हैं ना, तब यही एक सब इकट्ठे थे और इन्होंने ये एक जो एक कीचड़ उछाला हुआ था, ये एक नई से नई एक इन्होंने चीज़ें एक सामने रखते हैं जब भी एक रशिया की तरफ कोई भी जाता है। लेकिन आज भी जब भी एक वो सामने आए हैं ना, मतलब जब भी उन्होंने क्वेश्चन यही पहला पूछा है कि पीएम मोदी वहाँ गए, या दूसरा ये होता है कि एक ऑयल की बात की जाए ना, ये जब से एक पहला दिन जब एक वार का स्टार्ट हुआ है, और चाहे आज 1-2 साल हो भी गए हैं ना, तो इनका वही एक पॉइंट, वही एक ये बात इनकी रुकी हुई है कि आपने ऑयल ख़रीदा क्यों है। अब ये आप देख लें कि अब इंडिया है, उसको तो एक ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उनकी कंट्री है, वहाँ से तो अब निकल नहीं रहा, कि इंडिया ऐसे करता है कि वहाँ से छोड़ देता है कि एक अपनी कंट्री से निकल रहा है, वो यूज़ कर रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है, उनको एक इतना ज़्यादा ऑयल चाहिए तो किसी ना किसी कंट्री से तो लेना है उन्होंने। अब ईरान है, उस तरफ इन्होंने सैंक्शन लगाए हुए हैं। अब रशिया पे पहले नहीं थे, अब इतने ज़्यादा उन्होंने लगाए हुए हैं, तो अब ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से अब इंडिया लेगा, तो अब वहाँ से ले रहे हैं, तो इनको यही बस प्रॉब्लम है। और यही जब भी एक सामने आएंगे तो ये ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन आगे से ये है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बात की जाए ना, जब भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया ना, वो एक उनको एक सही क्लियर करते हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि हम ये कोई एक वार है ना, उसको हम कोई फंडिंग करने के लिए नहीं ऑयल वहाँ से ख़रीद रहे हैं, ये एक मार्केटिंग है, मार्केट के हिसाब से हम अपना एक ऑयल ख़रीद रहे हैं, अपनी कंट्री की ज़रूरत है इसके लिए ले रहे हैं, और नेक्स्ट लेते भी रहेंगे। सही है, उन्होंने एक पॉइंट उठाया है। नहीं, वाकई सही बात है। एक बीबीसी को लेकर ना एक ये एक बहुत लॉन्ग मतलब कि प्रोपेगेंडा है कि बीबीसी का और इंडिया का काफ़ी एक पुराना एक युद्ध एक चलते ही रहता है, क्योंकि इन्होंने वो एक, क्योंकि हाल ही में जब इन्होंने मतलब कि एक डॉक्यूमेंट्री एक छापी थी ना एक पीएम मोदी पर, वो तब से ना एक मामला काफ़ी एक मतलब कि ना एक स्टार्ट हुआ है। और जब इन्होंने एक कार्टून बनाया था मतलब कि एक इंडिया का, और कोई ना कोई चीज़ ये एक ज़रूर एक मतलब कि छापते रहते हैं। लेकिन पहले होता था, एक दौर था, एक बीबीसी न्यूज़ एक काफ़ी मतलब कि एक बड़ा एक होते थे न्यूज़ एजेंसी। लेकिन अभी को लेकर ना इनको मतलब कि कोई बंदा नहीं सीरियस लेता इनकी एक न्यूज़ वगैरह को। ठीक है, एक जब से पता चला है ना कि इनको पीछे एक मतलब कि इनको कवर कौन करता है और एक न्यूज़ वगैरह कहाँ से और जहाँ ये खबरें शाया करते हैं, तो सारी अब देखो ना, अब जब एक इंटरनेट का दौर नहीं था तब थोड़ा सा लोग इनको पढ़ते भी थे एक डिटेल से चीज़ें की। लेकिन अभी हर चीज़ एक मतलब कि जिसने एक कॉलम लिखना भी है ना, उसका भी सारा नाम वगैरह हर चीज़ आ जाती है। लेकिन ये तो भाई एक खुला इनका ना आपस में एक जर्चती रहती है। लेकिन जब डॉक्टर एस जयशंकर आगे होना, तो तब इनको एक सही एक राइट जो एक आंसर होते हैं ना, वो इनको ज़रूर मिल जाते हैं। लास्ट में भी काफ़ी एक अच्छे एक आंसर दिए थे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये जो उन्होंने भाई एक फिक्रा बोला है ना, इट मे नॉट बी ए पार्ट ऑफ यूर कल्चर, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना पंगा लेने से बाज नहीं आते। एक ये जो एक खासकर इस तरह इस वेस्टर्न मीडिया है ना, इसकी कोशिश होती है कि हर तरह से जो है ना वो एक जो है ना वो दबाव डालने की कोशिश करें। लेकिन ये नहीं पता था असल में इनको एक एशिया या खासकर हमारे जो 2 कंट्री है ना, इनमें अभी तक इनको एक जो है ना वो कोई बंदा एक मिला नहीं था जो एक टक्कर का। हमारा इधर एक खैर हमारे तो फॉरेन मिनिस्टर का एक नामो निशान भी नहीं होता ना, अगर वो जाता है तो बेचारे को समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है, बोलना क्या है हमारे, क्योंकि पता ही नहीं होता कि स्टेटमेंट अपना बयान क्या होता है पीछे क्या। लेकिन ये कि यहाँ पे जो भी है डॉक्टर
डॉक्टर एस जयशंकर बात करेंगे वो एक पूरे एक कंट्री की पॉलिसी होगी, एक फॉरेन पॉलिसी होगी, उसके ऊपर ही भाई एक इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। तो लिहाजा एक उसने थोड़ी सी एक कोशिश तो की है, लेकिन आगे से भाई उन्होंने जब ये जवाब दिया है ना तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया और देख लो कि एक फुली एक ट्रेंडिंग पे चला गया कि एक थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने पहले काफ़ी एक पंगे लिए हैं इधर एक इंडिया में, जो मतलब जो इन्होंने मतलब खासकर पीएम मोदी जी के ऊपर एक बनाई थी डॉक्यूमेंट्री, या उसके अलावा भी आपको ये एक नज़र आते होंगे। लेकिन आज का जो काम इसका हुआ है ना ये एक साफ़ी का वो उन्होंने सही एक सीधा लगाया। ज़ाहिर बात है कायल के वाले से उन्होंने ये पता नहीं इनकी तकलीफ़ क्यों नहीं बेचारों की एक दूर हो रही, हर तरीके से जब भी सामना पड़ता है इनको आ जाके और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। लेकिन ये कि यही एक सवाल ये सामने का। दूसरा भी उनका यही एक था कि आप अगर पीएम मोदी जी इधर आएँ तो क्या एक उनकी एक, तो ज़ाहिर बात है अगर गए हैं तो बेहतरी यही होगी कि दोनों कंट्री कहीं ना कहीं एक मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएं, जो कि एक हर एक का फ़ायदा है। ठीक है इतना पैसा लग गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद एक ना एक दिन तो इन्होंने किसी ना किसी साइड के ऊपर बैठना ही है। तो ये एक उन्होंने बहुत बड़ी नहीं वाकई सही बात है। आप देखो ना, या तो एक डायरेक्ट अमेरिका को बोले कि एक ईरान से एक पाबंदियाँ हटा दें, मतलब कि सैंक्शन हटा दें, तो एक बड़ी मात्रा में एक इंडिया उधर से एक तेल ले सकता है, और जो कि एक फ़ायदा भी होगा, मतलब कि एक रशिया से भी ज़्यादा परचेज भी करेंगे और एक करीब भी होगा, वो भी एक काफ़ी एक अच्छा है। लेकिन आगे आप मतलब कि एक अगर दुबई सऊदीया से लेते हैं तो वो भाई एक कीमत उनकी काफ़ी हैवी है, वो एक नहीं परचेज कर सकते। ज़ाहिर बात है एक छोटा सा घर तो चलाना नहीं, एक पूरी कंट्री चलानी है, और जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ ही भाई एक देखेगा हर कोई बंदा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई एक असल में इनका मसला था थोड़ा सा एक विजिट के हवाले से कि एक कोई ना कोई बात सामने आए। लेकिन ये कि ये एक सीन अच्छा हो गया यार उसके साथ, साफ़ी के साथ जो हुआ है ना यार। बिल्कुल यार, वो नीचे एक भाई ने कमेंट भी सही लिखा हुआ था कि अपनी पैंट गुम होगी इसकी कॉन्फ्रेंस के दरमियान बीसीसी वाले की। लेकिन ये कि एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।